ਥਾਪਿਆ ਨ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ, ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰੇ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦਨ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦਨ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਿਆਸ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖੇ, ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਈ, ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇਕ ਦੇ ਬੁਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 5ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਤਨੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠ ਹੈ। ਝੂਠ ਦੀ ਪਾਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਕੰਧ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਰਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਗਿਰੇਗੀ ਸੱਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਚ ਚੱਲ ਕੇ। ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਜੋ ਅਸੀਮ ਹੈ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਚ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵਿਗਸਦਾ ਹੈ, ਖੇੜੇ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲ ਕਾਮਨਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ, ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੋਕਸ਼ ਦੁਆਰ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦੁਆਰ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਈਸ਼ਵਰ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਥਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਅਸਥਾਪਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਟਿਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਅਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਜੜ ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੋ ਅਸਥਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੂਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜਦ ਜਦ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝਲਕ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਕਰਤਾ ਨਿਕਲੇ। ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਤ ਮਿਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤ ਜੜ ਹੈ।
कृत निश्चल नहीं अज है कल खत्म, लेकिन करता सदैव ही है, करता हमेशा है। तो परमात्मा कीता नहीं जा सकता, बनाया नहीं जा सकता। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इसे गल ते इतना जोर देंदे ने कि बिन करतार न कीर्तन मानो। हे अभ्यासियो, हे गुरमुख जनो, बिना करतार तो कृत नू करता ना मनो, कृत नू करता जान के ना झुको। हां, करता महान है, ओदी कृत भी महान है, पर कृत मिट जाती है, कृत नाश हो जाती है। कृत अज है कल नहीं। समूह ब्रह्मंड खंड सारे प्रभु दी कृत ने। प्रभु आप वड्डा है, ओदी कृत वड्डी है, पर कृत कितनी ही वड्डी क्यों ना होवे, आखिर मिट जाती है, आखिर नाश हो जाती है। तो साहिब कहंदे ने थापिया ना जाए कीता ना होए। उस परमात्मा नू अस्थापन नहीं कीता जा सकता और फिर कीता भी नहीं जा सकता। फिर उसकी होंद किस तरह है? जद उसनू बनाया नहीं जा सकता और उसनू अस्थापन नहीं कीता जा सकता, फिर वो कैसा है और किवें उसकी होंद है? तो सतगुरु कहते हैं आपे आप निरंजन सोए। अपने आप तो ही आप ओ सुभायमान है और निर्लेप है। कृत तो उच्चा है, निर्लेप है। अपने आप तो आप ही सुभायमान होया, आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचियो नाम। निर्लेप ऐसा है जैसे कि मुसव्वर ने चित्र बनाया है और चित्र तो एक पासे हो गए। इस वास्ते करते नू भगत कबीर चितेरा भी कहते ने। चच्चा रचत चित्र है भारी, तज चित्रे चेतो चितकारी। प्रभु एक महान चित्रकार है। ऐसा चित्रकार जिसने दरिया, पहाड़, सूरज, चंद, तारे चित्र दिते ने। चच्चा रचत चित्र है भारी, पर तज चित्रे चेतो चितकारी। कबीर ऐसा कहते ने कि चित्र वेखो चितेरे नाल जुड़ो। चित्र सिर्फ वेखण वास्ते है, जुड़न वास्ते नहीं। चित्र वेखण तक ही चंगा है। शोभा करो चितेरे दी, जिस चित्रकार तो इस तरह का सुंदर चित्र बना है। संगीत दी धुन अपनी थां ते महान होवेगी, पर संगीतकार तो बिना की मैंने रख दी है। कविता बहुत अच्छी भावपूरित होवे, पर कवि तो बिना उसदी होंद आलमे वजूद विच नहीं आ सकती। तस्वीर मुसव्वर दी कृत है, सारा जगत करते दी कृत है। पर चूंकि करता बहुत वड्डा है, बहुत वड्डा है, उदी कृत भी बहुत वड्डी है, बहुत वड्डी है। और इस सारे जगत नूं गुरबाणी चित्र कहंदी है। ये गल वखरी है कि कोई चित्रकार एक पहाड़ दा चित्र बनावे, असी चित्रकार नूं दाद देंदे नहीं थकदे। कहने आ तू कमाल कर दिता, ऐसा सोहना पहाड़ दा चित्र बनाया, पर जिसने इतने उच्चे उच्चे पहाड़ बना दिते, उस चित्रकार नूं कदी दाद नहीं दिती, उसदी कदी उपमा नहीं कीती। जो साडी बहुत सोहनी तस्वीर बना देवे, असी उस मुसव्वर नूं दाद देंदे आ, उदी महिमा गायन करदे आ भी तू साडी कितनी सोहनी तस्वीर बनाई, पर कदी उसदा धन्यवाद नहीं कीता जिसने सानू ही बनाया, जिसने साडी बनतर बनाई। कोई फुल दी तस्वीर बना देवे, वगदे हुए दरिया दी तस्वीर बना देवे, किसी पशु दी तस्वीर बना देवे, तो मुसव्वर दी, चित्रकार दी असी उपमा करदे आ। पर जिसने वगदे हुए दरिया बना दिते, सूरज चंद तारे बना दिते, ऐसा महान चितेरा कदी ख्याल दे च नहीं आया, कदी
धन्यवाद उसका नहीं कीता कि हे प्रभु तू एक महान चित्रकार है। भगत कबीर अपनी बाणी दे राहीं जगत नूं उपदेश करदे ने कि चच्चा रचत चित्र है भारी, तज चित्रे चेत्यो चितकारी, चित्र बचित्र है अवझेरा, तज चित्रे चितराख चितेरा। ऐ बंदे चित्र नूं सिर्फ वेख पर चित चितेरे दे च रख। चित्र वेखण वास्ते है पर चित दे च जिसनूं रखना है वो चितेरा है, वो चित्रकार है। अक्सर इस तो उल्ट हो जाता है कि चित्रकार भुल जाता है, चित्र ही चित दे च रह जाता है और इस तरीके नाल मिथ्या जिंदगी मनुख दी बतीत होंदी है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज इत्थे फरमान करदे ने प्रभु अस्थापन नहीं कीता जा सकदा ते प्रभु बनाया नहीं जा सकदा। ईश्वर साडी कृत नहीं, ईश्वर करता है। ईश्वर जड़ नहीं कि उसनूं टिका दिओ, अस्थापन कर दिओ। वो एक चेतना है, परम चेतना है। ये ठीक है कि मनुख जद बच्चा हुंदा है तो तस्वीरां दी भाषा नाल ज्यादा समझ सकदा है, छेती पढ़ लैंदा है। जैसे कि पंजाबी दे बाल उपदेश दे या बाकी दे बाल उपदेशां दे भी देखण नूं मिलदा है। उहदे च लिखिआ है कक्का कलम, चच्चा चाकू, छच्छा छतरी, दद्दा दवात। तो पढ़ाना बच्चे नूं दद्दा है, नाल दवात बना दिती गई है। अखर ते चच्चा ही बनाना है पर चाकू बनाने की की लोड़ पै गई। अखर ते कक्का ही पढ़ाना सी पर कलम क्यों बना दी। छच्छा अखर लिख के सामने छतरी क्यों बना दी। दरअसल चित्र बच्चा बहुत छेती पकड़दा है, उसका चित्त। तो जैसे वो छतरी नूं वेखदा है उसनूं बोध हो जाता है ये अखर छच्छा है। जैसे कलम नूं वेखदा है उसनूं बोध हो जाता है ये अखर कक्का होवेगा। जैसे चाकू नूं वेखदा है उन्होंने ख्याल आ जाता है ये अखर चच्चा होवेगा। तो तस्वीरां दे राहीं वो छेती अक्षरां नूं पकड़ लैंदा है ते अक्षरां दा बोध हासिल कर लैंदा है। हू बहू ये संस्कार मरदे दम तक बने रहिंदे ने। फिर अगां चल के मनुख परमात्मा नूं भी तस्वीरां दे राहीं समझदा है। स्वर्ग दी भी तस्वीर चाहिदी है, नरक दी भी तस्वीर चाहिदी है और बाजार दे च बकायदा नरक ते स्वर्ग दीयां तस्वीरां बिकदियां ने। और हकीकत यह है कि ये तस्वीरां उन्हां लोगां ने बनाईयां ने जिन्हां नूं अपने घर दा नक्शा नहीं बनाना आउंदा। उन्हां ने स्वर्ग दे नक्शे बनाए ने, उन्हां ने नरक दे नक्शे बनाए ने, मिथ्या ने, कल्पना मात्र ने। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान है कि ओ परिपूर्ण परमात्मा करता है, कृत नहीं है, अस्थापन नहीं कीता जा सकता। अपने आप तो आप ही सुभायमान है और निरंजन है, निर्लेप है। निर्लेप कैसे है और व्यापक कैसे है, इहदे उत्ते दो उदाहरण बड़े सोहने गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने दिते ने। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। जो सर्व व्यापक है ते सदा निर्लेप है, तेरे नाल है, उदी टोल कर, उदी खोज कर, उदे नाल जुड़। हुण इत्थे सवाल पैदा होंदा है, जो सर्व व्यापक है और सदा निर्लेप किस तरह होया? व्यापक निर्लेप किस तरह हो सकता है? जर्रे जर्रे दे व्यापक किस तरह निर्लेप हो सकता है? तो दो उदाहरण दिते ने। वो व्यापक कैसा है और निर्लेप कैसा है? पहुप मद ज्यों बास बसत है। व्यापक ते वो ऐसा है जैसे फुल दी पत्ती पत्ती दे च महक है। पहुप मद ज्यों बास बसत है, मुकर माए जैसे छाई। निर्लेप वो ऐसा है जैसे शीशे दे च अक्स दिखाई दे रहे हैं। असी शीशे दे च, पर फिर भी शीशे दे च नहीं है। जगत दे चो व्यापक है, फिर भी जगत दी पकड़ नहीं। इस तरह वो निर्लेप है
और इस ढंग नालों व्यापक है। महात्मा टैगोर ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋਣ ਦਾ ਬੋਧ ਉਸ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਨੱਚ ਉੱਠੇ ਠਾਕੁਰ ਰਾਵਿੰਦਰਨਾਥ। ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਆਇਆ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਦੈਵੀ ਸੰਪਦਾ ਲੱਭ ਪਈ? ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਰਾਜ ਲੱਭ ਪਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। परमात्मा निर्लेप है, पता चल गया। जैसे सूरज दियां किरणां गंदगी दे ढेर नूं छू रहीआं ने पर गंदियां नहीं हो रहीआं। प्रभु मेरे गंदे शरीर दे च व्यापक है पर गंदा नहीं आउंदा। निर्लेप है, पावन है, पवित्र है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहने निरंजन। अंजन तो रहत है, कालक तो रहत है, निर्लेप है। जो अस्थापन नहीं किया जा सकता, बनाया नहीं जा सकता, टिकाया नहीं जा सकता, जो अपने आप तो आप सुभायमान है और निरंजन है। साहिब फरमान करते ने, जिन सेव्या तिन पाया मान। जिन्हां ने सेवा की उन्हां ने मान प्राप्त किया। क्या प्रभु नूं भी साडी सेवा दी लोड़ है? ईश्वर परिपूर्ण परमात्मा सर्वज्ञ है, समर्थ है। सेवा अपने तो कमजोर दी करी दी है। अपने तो जो महान है उदी की सेवा करांगे? उसदी पूजा हो सकती है, उसदी सेवा किस तरह करांगे? लोड़ ही नहीं तो किस दी सेवा? अपने तो वड्डे दी पूजा आउंदी है, अपने तो छोटे दी सेवा आउंदी है। पर इत्थे सतगुरु कहंदे ने, जिन सेव्या तिन पाया मान। गुरबाणी दी व्याख्या गुरबाणी करदी है तो पातशाह इस गल नूं खोलदे ने, हर की टहल कमावणी जपिए प्रभ का नाम। बस प्रभु दा नाम जपना ही सेवा है और कोई नहीं। और प्रभु दा नाम जपदियां जपदियां बाद विच पता चलदा है मैं ते अपनी सेवा कर ली। ऐसी मैं अपनी सेवा की थी कि मैं कमजोर से मैं ही प्रभु हो गया, मैं परमात्मा वर्गा हो गया। प्रभु दे गीत गा गा के, ईश्वर दे गीत गा गा के। इस वास्ते ईश्वर दी महिमा गायन करनी, अपनी महिमा वधानी है। ईश्वर दे गुणां दा जिक्र करना स्वयं नूं गुणवान बनाना है। जो ईश्वर नूं बलवान आखदा है वो आप बलवान हो जाता है। जो ईश्वर नूं परम प्रकाश आखदा है वो स्वयं प्रकाश दा सोमा बन जाता है। जो ईश्वर नूं दाता आखदा है वो खुद दाता बन जाता है। जो ईश्वर नूं व्यापक आखदा है वो स्वयं विशाल बन जाता है ते व्यापक दृष्टि दा मालिक बन जाता है। इस तरीके नाल परमात्मा नूं वड्डा वड्डा करके आखना खुद नूं वड्डा करना है, ना कि परमात्मा नूं वड्डा करना है। परमात्मा नूं वड्डा वड्डा असी आखीए इसकी लोड़ नहीं। जे सब मिलके आखण पाए वड़ा न होवे घाट ना जाए। जैसे असी कहिए सूरज दे च बड़ी रोशनी है, बड़ी रोशनी है, साडे कहण नाल रोशनी नहीं है। जे असी ना आखीए तां सूरज दे च कोई अंधकार भी नहीं हो जाएगा, वो ते परम प्रकाश है। जे असी परमात्मा दे गुणां दा जिक्र करिए ते साडे जिक्र करन नाल ही गुणवान नहीं है, वो स्वयं गुणवान है। ते जे ना करिए तां उस दे गुण कोई घटदे भी नहीं। तो सेवा दरअसल प्रभु दी अपनी ही सेवा है, अपनी ही महानता वधानी है, अपने ही गुणां नूं वधाना है। जिन सेव्या तिन पाया मान। जिन्हां ने फिर सिमरन कीता, जिन्हां ने फिर इस ढंग दी सेवा की थी, जगत दे सन्मान मिलना लाजमी सी। ते मान मिलदा है जिथे ताण होवे, जिथे शक्ति होवे। तो प्रभु एक शक्ति है। शक्ति नाल जुड़दियां, ताण नाल जुड़दियां, शक्ति दे प्राप्त करदियां कुदरती गल है जगत विच
ਮਾਣ ਵਧਣਾ ਸੀ। ਤੋ ਹੁਣ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਖੋਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਣ, ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਉਹ ਜੋ ਗੁਣਾ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗਾਵੀਏ। ਕੀ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਣ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਈਏ, ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਗੁਣ ਵਧਦੇ ਜਾਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਣ ਵਧਦੇ ਜਾਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇੜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਣ ਤੇ ਉਂਝ ਮਹਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਧਾਰਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਨੂੰ, ਦੋ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤੋਸ਼ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਸੰਤੋਖੀ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਦਇਆਲੂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਨਿਰਾਕਾਰ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਾਕਾਰ ਦੀ। ਸਾਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਣਾ ਹੈ, तो साकार ਨੂੰ सेवा ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। निराकार ਨੂੰ सेवा ਦੀ ਲੋੜ नहीं। निराकार निर्लेप है। सेवा करके साकार नाल जुड़ना है, सिमरन करके निराकार नाल जुड़ना है। सेवा किसने करनी है? जिथे दया होवे, और सिमरन किसने करना है? जिथे संतोष होवे। तो साहिब कहते ने नानक गावी है गुणी निधान। की गाई है, किस तरह गाई है? कोई सुर ताल दा बोध नहीं, कोई प्रभु दे गुणां दा बोध नहीं। की गाई है? तो साहिब कहते ने गावी है, सुनी है, मन रखी है, भाव। पहले उस प्रभु नु सुनो। इस वास्ते सत्संग दी महिमा है। ते सत्संग ओ जिथे सच दी चर्चा चल रही होवे, जिथे सत दी व्याख्या कीती जा रही होवे, जिथे सच दे गुणां दा प्रगटावा हो रहा होवे, उत्थे कोई बैठे ते एक मन हो के सुने, ध्यान ला के सुने। सुनदियां ही वो सत्संगी बनेगा, सुनदियां ही उसका संबंध जुड़ेगा। एक बंदा बोल रहा होवे ते दूजा सुन ही नहीं रहा, संबंध नहीं जुड़ेगा। संबंध ते सुनदियां ही जुड़ेगा। बोलना और सुनना इस संबंध नूं जोड़दा है, वेखण नाल संबंध नहीं जुड़दे। दुश्मन भी एक दूजे नूं वेख लैंदे ने, पर दुश्मन आपस दे विच ना एक दूजे नाल बोलदे ने, ना एक दूजे दी गल सुनदे ने। इस वास्ते प्रभु दा संबंध सुनन ते बोलण ते खड़ा है। सुननी है उसकी गल, ताई परमात्मा नाल संबंध जुड़ सकेगा। पहले सुननी है। तो किहड़े बोल सुनने ने? जगत दे रहबरी पुरुष, अवतारी पुरुषां दे जिहड़े बोल ने, वो प्रभु दे बोल ने, वो ईश्वरी बोल ने। इस्लाम दे पैगंबरी पुरुष मुहम्मद साहब दा कहना सी, ए कुरान मेरे ते नाजिल होई है, ए मेरी नहीं, खुदा दे बोल ने।
खुदा दे बचन ने। मैं ते सिर्फ एक माध्यम दी तरह उस कलाम नूं प्रगट कीता है, वरना ये बोल नाज़िल होए ने ये खुदा दे ने। हू बहु इसे तरीके नाल साडे देश दे ऋषि मुनि कहंदे रहे कि वेद बाणी देव बाणी है, प्रभु दी बाणी है, साडे ते आकाश बाणी हुई है। इसे तरीके नाल सूफी संत कहंदे रहे ने अलहाम होया सानू, और जो कुछ उन्हां नू अलहाम होया लिखत दे राही जगत दे सामने रख दिता। गुरु नानक देव जी महाराज दे जितने बचन ने, जितनी बाणी है, इस प्रथाई आप दे वाक ने कि जैसे में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान वेला लो। जैसे खसम दी बाणी आई है वैसे वैसे मैं बोलिया। मैं ते सिर्फ बांसुरी हां, इस स्वर ते किसे होर देने। मैं ते सिर्फ साज हां, ये आवाज किसे होर दी है। किसे होर ने मेरे विचों आवाज कड्डी है, कोई होर मेरे विचों बोले है। मेरे जीवन दे साज दे चों ये नगमे किसे होर ने कड्डे ने। ओ है खसम, ओ है मेरा मालिक, ओ है ईश्वर। तो जिथे जिथे ईश्वर बोले है, भगत जन, संत जन, अवतारी पुरुष ये खुद नहीं बोलते, इन्हां दे च प्रभु बोलदा है, इन्हां दे च ईश्वर बोलदा है। इस वास्ते इन्हां दे बोल कदी पुराने नहीं होंदे, इन्हां दे बोल कदी फिक्के नहीं पैंदे, इन्हां दे बोल कदी बेरस नहीं पैदा करदे। इन्हां दे बोलां दे च नवीनता बनी रहिंदी है। एक कविता एक दफा सुनो, दो दफा सुनो, तीसरी दफा लाजमी पुरानी हो जाएगी। लेकिन संत महापुरुषां दे बचन रोज रोज पढ़िए तां भी कोई नवा स्वाद, कोई नवी उमंग, कोई नवी तरंग, कोई नवी दुनिया दे द्वार खुलदे ने, क्योंकि ये वो बचन ने जो खसम दे बचन ने। तमाम श्रेष्ठ पुरुषां ने ऐसा ही आख्या है कि असी नहीं बोले, साडे विचों खसम बोले है, मालिक बोले है। ज्यों तू बुलावे त्यों बोले सामे, स्वामी कुदरत कौन हमारी। बेसुमार अथा अगंत अतोले, ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले। हे प्रभु, जैसे जैसे तू बुलाया मैं ते वैसे ही बोलिया है, बोल मेरे नहीं। कोई कवि किताब लिखदा है, दावा करदा है मैं लेखक हां, ये किताब मेरी है, इसदा मैं लिखारी हां। पर सत पुरुष जो उन्हां दी रसना तो बचन निकलदे ने, उन्हां बारे उन्हां दा दावा नहीं होंदा कि ये बचन मेरे ने, क्योंकि खसम दे बचन ने। तो उन्हां बचनां नूं बार बार बोलना है, उन्हां बचनां नूं बार बार सुनना है। गाविए सुनिए, सुनना है और गावना है। गाविए सुनिए, मन रखिए भाव। सुन के गाओ के फिर मन दे च भाव पैदा करना है। ये ठीक है कि भाव एक ऐसी अवस्था है जिन्हों असी गुण ते नहीं कह सकते, एक अवस्था ही कह सकते हैं। तंदुरुस्ती शरीर की एक अवस्था है, बीमारी शरीर की एक अवस्था है, भाव मन की एक अवस्था है जिसनों रोज याद करिए, याद ही भाव बन जाता है, याद ही प्रेम बन जाता है, सिमरन ही प्रेम बन जाता है। तो सदगुरु कहते ने रोज सुनना है, गावना है, और उतने चिर तक गावना है ते सुनना है जितने चिर तक गाविया सुनिया भाव नहीं बन जाता, प्रेम नहीं बन जाता। प्रेम बनया गावना सफल हो गया, सुनना सफल हो गया। प्रेम नहीं बनया, गावना और सुनना अजे बीज रूप देते है, अंकुरित नहीं होया, फलीभूत नहीं होया, अजे फल तक नहीं पहुंचया। हर फल दा बीज एक होंदा है, पर दुखां दे बीज अनेकां ही ने। अनेकां कारणां तो दुख पैदा हो जाता है। अनंत बीज ने इत्थे, और दुख एक बोझ है। जिस तरह परमात्मा व्यापक है,
ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ? ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਗਤ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਖ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਧਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੈਦ, ਹਕੀਮ, ਡਾਕਟਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗ ਨੇ ਤੇ ਰੋਗਾਂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਈ ਹੈ। तो हिकमत मौजूद है, वैद मौजूद ने, डॉक्टर मौजूद ने, पर रोग भी मौजूद ने। रोगां दी निवृत्ति नहीं हो सकी। एक रोग नूं काबू करिए, अनंत रोग होर पैदा हो जांदे ने। जितने चिर तक कोई नवी दवाई बाजार दे च आउंदी है, उस तो पहले कोई नवा रोग मनुख दे शरीर दे च प्रगट हो जांदा है। तो औषधियां मौजूद ने, रोग भी मौजूद ने। मनुख दी मानसिक पीड़ा हरण वास्ते अनेकां तरह दे मनोविग्यानी भी मौजूद ने, जिन्हां दी कोशिश है कि मनुख दे मन दे दुख दा, सहम दा जो वहम है ये कढ दईए। लेकिन ये सारे अपनी थां ते मौजूद ने, पर दुख भी अपनी थां ते मौजूद है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा ए वाक अमर है कि बाली रोवे नाए भतार, नानक दुखिया सब संसार। जिथे परमात्मा सर्व संसार दे च व्यापक है, दुख भी व्यापक है। दुख जिस ढंग नाल दूर होंदा है, वो ढंग मनुख ने अपनाया नहीं। ते जिहड़े जिहड़े साधना नाल दुखां दी निवृत्ति हो नहीं सकदी, वो मनुख ने अपनी झोली दे च पाए हुए ने। इस वास्ते हर दिन किसी नवे दुख नूं जन्म दे रहा है और दुखां दी पंड सिर ते वधदी जा रही है। साहिबां दा फरमान है, दुख कियां फंडा खुलियां, सुख ना निकले कोई। हर मनुख दे सिर दे उत्ते दुखां दी गठड़ी है और ये बोझल होंदी जा रही है। रोज वधदा जा रहा है दुख, घटदा नहीं पे। इस गल नाल अजीम चिंतक सहमत हो गए ने कि एक सदी पिछे चले जाइए ते मनुख दे मन दे च इतना संताप नहीं सी जितना अज है। 5 सदियां पिछे चले जाइए ता मनुख दा मन जितना संतोषी सी अज नहीं है। और इसी तरीके दे नाल 2-3 हजार साल पिछे चले जाइए, दैवी गुणां दी जो संपदा मनुख दे कोल सी अज नहीं है। और ठीक है कि अज जितनी सियाणप है, अज जितनियां नवी तो नवीं औषधियां ने, अज जितनी विज्ञान दी उन्नति है, वो पहले नहीं सी। पर अज जितना दुख है, ये पहले नहीं सी। रुखां तले पहाड़ां दी कंदरां दे च रह के और कखां दी कुली दे च रह के भी मनुख सुखी सी। अज फलक बोस इमारतां दे च रह के भी मनुख दुखी है। पैदल यात्रा करके एक थां तो दूसरी थां जाण दे इसदे कोल कोई साधन नहीं सन, लेकिन फिर भी परमात्मा तक पहुंचण दा मनुख दे कोल वसीला सी। अज एक थां तो दूसरी थां तक पहुंचण दे बड़े सोहने साधन उपलब्ध ने। बसां, रेलां, कारां, हवाई जहाज, आवाज तो भी तिखे चलन वाले मौजूद ने एक थां तो दूसरी थां ते पहुंचण वास्ते। पर मनुख दा परमात्मा तक पहुंचना औखा हो गया। जितने चंगे तो चंगे ते स्वादिष्ट पकवान अज ने,
ਅੱਜ ਤੋਂ ਚੰਦ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਤਨਾ ਫਿੱਕਾਪਣ ਅੱਜ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਜਿਤਨੇ ਸੁੰਦਰ ਬਸਤਰ ਅੱਜ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਨੰਗਾ ਅੱਜ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਨੇ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਤਨਾ ਅੱਜ ਕਰੂਪ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਤਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਹਿਰਦਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਪਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੁਲਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਭਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿਰਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਘਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਧਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਲਏਗਾ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਵੇਗਾ। ਸਾਧਨ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਵੀਏ, ਸੁਣੀਏ, ਮਨ ਰੱਖੀਏ ਭਾਵ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੀਤ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋਈਏ ਉਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਗਾਇਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਗੀਤ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੁਖ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਦ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਆਨੰਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਪੰਜ ਤੱਤ ਦਾ ਇਹ ਪੁਤਲਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਦੇ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤੱਤ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਸਤਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾ, ਐ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾ। ਔਰ ਇਤਨੀ ਮਿੱਟੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਵਾਰ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖਣ ਦੇ ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨੂੰ, ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਸਤਕ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਜੇ ਮਸਤਕ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨੁੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਾਕ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਨਸੀਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖਾਕ ਬਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਰਮ ਹੈ। ਜਲ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਲੱਭਿਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ, ਜਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹ ਸਾਧਨ ਵੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਨੇ ਜੋਗੀ ਜੈਨੀ। ਜੈਨੀਆਂ ਦੇ तमाम ਤੀਰਥ ਖੁਸ਼ਕ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਗਰਮ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਯੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਧੂਣਾ ਤਪਾ ਕੇ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਅਗਨ ਨੂੰ, ਅਗਨੀ ਨੂੰ। ਇਤਨਾ ਤੇਜ, ਇਤਨੀ ਅਗਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਧਾ
कि अगन ही ब्रह्म बन जाए, जिसनों कहते हैं ब्रह्म अगन। अपने जीवन नूं जल वर्गा बना ले, जैसा कि जल परोपकारी है, प्यास बुझा देंदा है, निर्मल कर देंदा है, स्वच्छ कर देंदा है। तू जल बन जा। बार बार इशनान, बार बार दरियावां दे तट ते बैठना और 68 तीर्थां दा रटन करना, ये जल होण दी कोशिश सी। अग्नि दे आले दुआले बैठना या चारों पासे अगन जला के विचकार बैठना, ये ब्रह्म अगन नूं प्रज्वलित करने दी कोशिश सी। बार बार मस्तक नूं मिट्टी ते रखना, जमीन ते रखना, ये मिट्टी होण दी, निर्माण होण दी कोशिश सी। गुरु नानक देव जी महाराज ने पवन तत्त नूं माध्यम बना के परमात्मा तक पहुंचने की कोशिश की है। ते पवन तत्त दी प्रकृति है बोलना। देही माटी बोले पवन। सिर झुका झुका के, सिर नूं जमीन ते रख रख के, सिर नूं पहुंचाया गया खुदा तक इस्लाम दी साधना। जल दे नाल इशनान कर करके, बार बार कर करके पवित्र बनाया गया अपने आप नूं वैदिक ढंग नाल। अगन चारों पासे बाल के, धूणे तपा के, धुप दे च बैठ के ब्रह्म अगन दी कोशिश की गई कि मनुख दे अंदरों पैदा होवे। बार बार बोल बोल के कोशिश की गई कि मनुख दे अंदरों परमात्मा बोले, मनुख दे अंदरों ईश्वर बोले। ईश्वर दा नाम कोई बोलदा जाए और बोलदियां बोलदियां जिथे खुद मनुख मिट जांदा है, उत्थे फिर मनुख दे अंदरों ईश्वर ही बोलन लग पैंदा है, परमात्मा ही बोलन लग पैंदा है। तो पवन तत्त नूं प्रधान बना के, साधन बना के गुरु नानक ने प्रभु दी बंदगी आरंभ की थी। देही माटी बोले पवन, असी बोलदे हां पवन करके। बोली जा ऐ बंदे, उतने चिर तक बोली जा जितने चिर तक तैनू अबोल अवस्था नसीब नहीं आउंदी। कैसो कैसो कूकिए ना सोइए आसार, रात दिनस कै कूकने कभै के सुने पुकार। इक दू जीबो लख होवे लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश। जगदीश दा नाम रटन करी जा, वाहिगुरु वाहिगुरु जपी जा, और इतने चिर तक बोल जितने चिर तक तेरे अंदरों परमात्मा नहीं बोलदा। बोली जा एक साधना है गुरु घर दी। इशनान करी जा जितने चिर तक तेरे अंदरों पवित्र आत्मा प्रगट नहीं होंदी, इतने चिर तक इशनान करी जा। तपाई जा धूणे जितने चिर तक तेरे अंदरों ब्रह्म अगन प्रगट नहीं होंदी। टेकी जा मस्तक, झुकाई जा सिर, मिट्टी नाल अपना मस्तक जोड़ी जा जितने चिर तक ये कबूल नहीं होता कि जीवन मिट्टी है और परमानंद खुदा सतचित आनंद है, वो मिट्टी नहीं होता। तो साहिबां दा ये वाक बोली जा कीरत प्रभ की गाओ मेरी रसना, ऐ रसना बोली जा, ऐ रसना तू गाई जा। तो सतगुरु ने दुखां दी निवृत्ति दा ये साधन दसिया है। गावीए सुनिए मन रखिए भाव, दुख पर हर सुख घर ले जा। पर सवाल ये पैदा होता है की गाइए, आखिर किस तरह गाइए और की गाइए। तो सतगुरु दसदे ने गुरमुख नादन, गुरमुख वेदन, गुरमुख रेहा समाई, गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। गुरु दे मुख तो जो बोल निकले है वही नाद है, और गुरु दे मुख तो जो बोल निकले है वही वेद है। सब नाद वेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी।
गुरु तो मुराद जो स्वयं रोशन हो चुके है, प्रकाशित हो चुके है, प्रकाश दी मूर्ति हो चुके है। जिथे प्रभु बोलदा है, आप नहीं बोल रहे। हूं आपो बोल न जानदा, हूं कहा सब हुक्माओ जियो। ਉਹ ਜੋ ਬੋਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੁਹਰਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਬੋਲ? ਜੋ ਖਸਮ ਬੋਲੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲੇ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੋਲ ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕਬੂਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਬੋਲ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਸਮ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਬੋਲਿਆ। तो गुरमुख नादन, गुरु दे मुख तो निकले होया नाद, यही अनहद शब्द है। अनहद बाणी नाद वजाया। गुरमुख वेदन, गुरु दे मुख तो जो निकले होया वाक है, यही ज्ञान है, यही वेद है। गुरमुख रिहा समाई, गुरु दे मुख तो जो निकले होया वाक है, परमात्मा उस दे समाया होया है, परमात्मा उस दे व्यापक है। उन्हां बोलां नूं बोल बोल के मनुख परमात्मा नाल जुड़ सकदा है। जगत विच इस तरह दे बोल मौजूद ने। उन्हां नूं अगर बार बार जपिया जाए, पढ़िया नहीं, जपिया जाए, तो कुरान दे बारे मोहम्मद साहब दा यही कहना सी, ये खुदा बोलिया मेरे विचों। तो गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, ये बाणी खसम दी, ये मेरे चों खसम बोले है। तो गुरु दे मुख तो जो निकले होया वाक है, यही नाद है। गुरु दे मुख तो जो निकले होया वाक है, यही वेद है। और गुरु दे मुख तो जो वाक निकले होया है, परमात्मा उस दे समाया होया है, ईश्वर उस दे समाया होया है। तो गुरु दी इतनी वड्डी महिमा सतगुरु दसदे ने, गुर ईसर गुरु गोरख बर्मा गुरु पार्वती भी। गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शिवजी है, गुरु ही गोरख है, गुरु ही ब्रह्मा है, और गुरु ही पार्वती मां है। विष्णु दी तरह सतो गुण रखण वाला गुरु है। शिवजी दी तरह बैरागी बिरती रखण वाला गुरु है। ब्रह्मे दी तरह ज्ञान रखण वाला गुरु है। और पार्वती दी तरह सेवा भाव रखण वाला गुरु है। एक एक गुण किसे एक एक देवते दे चो लभांगे, सारे गुण गुरु दे च मौजूद ने। सरबग गुण गुरु दे च मौजूद ने। जिथे विष्णु हार श्रृंगार करके खड़े ने, लक्ष्मी कोल है, बड़ी शानो शौकत है, सजावट है, उत्थे देखण दे च आएगा कि मुर्दियां दी खोपरी दी माला शिवजी दे गल दे च तालमेल नहीं खांदा। शिवजी दा ए स्वरूप ते विष्णु दा ए स्वरूप। वेद ने ज्ञान उचारण हो रहा रसना तो ब्रह्मा दा ए रूप भी शिवजी नाल मेल नहीं खांदा। ए वख वख ने, पर गुरु विष्णु दी तरह सतोगुणी है। गुरु शिवजी दी तरह बैरागी है, काल नू वेख के अकाल तक पहुंचता है। और गुरु ब्रह्मे दी तरह ज्ञानी है, और गुरु पार्वती दी तरह सेवा भाव रखण वाला है। गुरु दे दर्शन सरबग देवतियां दे दर्शन ने। तो गुर ईसर गुर गोरख बर्मा गुर पार्वती माई। साडे देश दे गुरु दी इतनी महिमा कि एक भगत दा कहना है, गुरु गोविंद दोनों खड़े कांके लागों पाए, बलहारी गुर आपने जिन गोविंदियों मिलाए। सदके जाइए उस गुरु तो जिसने गोविंद नाल जोड़ जोड़ दिता। बलहार जाइए उस गुरु तो जिसने प्रभु दा मार्ग दसिया ते प्रभु तक पहुंचाया। इस वास्ते सतगुरु कहने ने, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही गोरख है, गुरु ही शिवजी है, और गुरु ही पार्वती मां है। जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन न जाई। गुरु नानक देव जी महाराज दा इत्थे फरमान है
ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਝਲਕ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਜ਼ਬਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਕਦੀ ਮਨੁੱਖ ਅਨਾਹਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਲ ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਆਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ? ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਥਨੀ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣੇ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ, ਮੇਰੀ ਕਹਿਣੀ ਤੁੱਛ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਮਾ ਦੇ ਚ ਹੈ। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज भी फरमान करते ने, क्या हो कथी कथे कथ देखा मैं अकथ ना कथ ना जाए। मैं कथन कर करके वेख लिया, हे प्रभु तू मेरी कथनी दे च नहीं आउंदा, मेरे कहने दे च नहीं आउंदा। तो जे हो जाना आखा नाही, कहना कथन ना जाए। जे मैं उस परम शक्ति नू जान भी लिया, तां भी मैं कहना नहीं। क्यों? कि वो मेरे कहने दे च नहीं आउंदा। मेरा कहना सीमत, ओ महान। तो फिर एक अरदास है, प्रार्थना है, गुरा एक देह बुझाई। हे गुरु एक गल बुझा दे, एक दी सूझ दे। क्यों? कि एक वस्त बूझे ताहों में पाक, बिन बूझे तू सदा ना पाक। एक नू जान लईए ते मनुख पवित्र हो जाता है, एक नू ना समझिए ते मनुख अपवित्र होता है। एक नू जान लईए ते बंदा सब कुछ जान लैंदा है, और एक नू ना जानिए तां सब कुछ जानन दे बावजूद भी बंदा अज्ञानी रहिंदा है। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, गुरा एक देह बुझाई। हे गुरु एक दी बूझ बुझा, एक दी सोझी करा। केड़े एक दी सोझी, केड़े एक दा ज्ञान। सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। जो सारियां जीवां नू दात देण वाला है, कीड़े मकोड़े, अस्थूल सूक्ष्म, जल जंतु, थल जंतु, नभ जंतु, बनस्पति, जो सबनों रिज़क पहुंचाने वाला है, जो सबनों दात देने वाला है। हे गुरु उसदी सूझ करा, उसदी समझ करा। ते सिर्फ सूझ ही नहीं, सिर्फ समझ ही नहीं, सो मैं विसर ना जाई। ओ मैनू भुले भी ना, उदी याद भी हमेशा बनी रहे। ते जिदी याद बनी रहे, उदे नाल संबंध जुड़िया रहिंदा है, और जिदी याद मिट जाए उदा संबंध भी टुट जाता है। भाई साहब भाई नंद लाल तदी ते मंगदे ने, या इलाही चश्मे बीना ए बिदे, दर सरम अज इश्क सौदा ए बिदे। हे गुरु बख्शिश कर, सिर दे च अपना प्यार दे, इश्क दे, याद दे। क्योंकि एक याद ही है जो तेरे नाल संबंध जोड़ के रख दिए। और जिथे प्रभु दा चिंतन है, प्रभु प्रकाश स्वरूप है, प्रभु दा चिंतन मनुख नू प्रकाशित कर देगा। परमात्मा आनंद स्वरूप है, परमात्मा दी याद भी मनुख दे अंदर आनंद पैदा कर देवेगी। किसी व्यक्ति दा चिंतन करिए ते जिहड़ा आप दुखां दा मारिया होया होवे, तो व्यक्ति दा चिंतन दुखां दा चिंतन है, संसार दा चिंतन दुखां दा चिंतन है। क्योंकि संसार दे कण कण दे दुख ही व्यापक है। निरंकार दा चिंतन सुखां दा चिंतन है, निरंकार दा चिंतन आनंद दी प्राप्ति है। प्रभु दा चिंतन
खुशियां नूं झोली दे जो है पाना है। तो साहिब फरमान पे करते ने, हे गुरु मैनू उस एक दी सूझ करा, उस एक दी जो सारिया जीवां दा दाता है, राज़िक रहिंद है, रोजी देहिंद है। और फिर जिथे उसदी मैनू तू सूझ करा वो मैनू भुले भी ना। अठे पैर उसदी याद चली रहे, अठे पैर उसे दे अंदर चिंतन चलदा रहे। गुरा इक दे बुझाई सबना जियां का इक दाता, सो मैं विसर न जाई। जीवन सानू दान दे च मिले है, सूरज दी रोशनी सानू दान दे च मिली है, पवन पानी सानू दान दे च मिले है, हथ पैर सानू दान दे च मिले ने, मां बाप सानू दान दे च मिले ने, सब कुछ सानू दान दे च मिले है। ऐसा जिहड़ा वड्डा दाता है, वड्डा दाता तिल ना तमाए, पहाड़ा जितना दे के भी तिल जितनी भी मंग नहीं करदा। साहिब कहंदे ने सबना जियां का एक दाता, सो मैं विसर ना जाई। वो सारिया जीवां दा जो दाता है, राज़िक रहिंद है, ओदी याद मेरे अंदर चलदी रहे, उसनू मैं कदी भुला ना। हे गुरु तू इस तरह दी बूझ बुझा, इस तरह दी समझ दे, इस तरह दी तड़प दे, इस तरह दा सिमरन दे। हे गुरु तू बख्शिश कर, रहमत कर।